Hello students, welcome back in your computer lecture. This is your lecture 2 of working in MS Excel. In this lecture, we will continue our chapter moving in a worksheet. By using the arrow keys, you can move around your worksheets. The table below has some keys commonly used to move around worksheets. So you can by using your arrow keys, you can move around your worksheet. And here some keys are shown you. Then how the keys you can use in MS Excel. First key is tab key. Move to the right to the next cell in the row. You by using the tab key, you can move your cell to the right in a row. Enter key is used for move to the cell in a column below. Shift plus tab, move to preceding cell. Arrow keys, move right, left, up and down, one cell at a time. Control plus arrow keys, move to the edge of the current date region. Home, move to the beginning of row. Control plus home, move to the cell A1. Control key plus down arrow. To move to the last row, control key plus up arrow. To move to the first row, control key plus right arrow. To move to the last column, control key plus left arrow. To move to the first column, control key plus home. To move to the cell A1, which is your first cell of your Excel sheet, control key plus and to move to the last used cell of your worksheet. So these are the keys which इनको यूज़ करके आप अपने एक्सेल शीट में जो आपकी सेल्स हैं उनको मूव कर सकते हैं. Now on page number 46, you have to fill these fields. Write the name of the cell with the dark border. So here you have to fill all the ये आपको यहाँ पे डार्क बॉर्डर दी गई हैं, इनको फिल करना है. ये क्या है? ये एक पूरा एक एक्सेल शीट है जिसमें आपके ये एक्टिव सेल्स हैं. यहाँ पे डार्क करा है आपको, तो आपको इन सब का एड्रेस लिखना है, नेम लिखना है. इनका नेम कैसे होता है? द कॉलम्स फॉलो बाय द रोज. सो दिस कॉलम इज कॉल्ड एज द B2, दिस वन इज A5, दिस वन इज B4, दिस वन इज C3, this is D2 and this is D6. So you have to write here. Now next is entering information. आप एक्सेल में information enter कैसे करेंगे? Click once in the cell in which you want to type information. Type the number or text that you want should appear in the cell. अब आपको क्या करना है? इसके अंदर किसी भी सेल में जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन टाइप करनी है वो आप सेलेक्ट करेंगे सेल को. फिर उसमें आप कोई भी नंबर या टेक्स्ट, अल्फ़ाबेट्स कुछ भी टाइप कर सकते हैं. ऑब्जर्व दैट यू वांट व्हाट यू आर टाइपिंग अपेयर्स नॉट ओनली इन द सेल बट ऑल्सो ऑन द फॉर्मूला बार. टू कैंसिल द इंफॉर्मेशन you have typed, click on the cross to press the escape key on your keyboard. तो आपको इसमें क्या करना है? आपको ये ऑब्जर्व करना है कि जो भी आपने टाइप किया है, जो अपेयर हुआ है इन सेल्स के अंदर, वो फार्मूला बार में भी हो, वो जिस भी सेल में आप कर रहे हैं उनका फार्मूला बार पे उनका एड्रेस हो. एंड टू कैंसिल द इन्फॉर्मेशंस यू हैव टाइप, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन टाइप की अगर आपको उनको कैंसिल करना है तो आपको एक्सेप्ट की कीबोर्ड से प्रेस करनी होगी. The next is practice entering data. To practice how to enter data in a Excel worksheets, follow the given step. अगर आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप एक्सेल वर्कशीट में आप कैसे एंटर कर सकते हैं डेटा, तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे. विच इज़ स्टेप 1, ओपन अ न्यू वर्कबुक. Second is click in cell B2 and type roll number.
Third is click in cell C2 and type name. Third is click in cell C2 and type marks. Fourth, click in cell B3 in the next row, type the roll number, name and marks of the first student. Similarly enter the rest of the data. तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके से, ये रोल नंबर यहाँ पर आ गया टाइप आपके, नेम, मार्क्स, number, name and marks. Like this you can fill all your data in the Excel sheet. Next is wrap text. When you type text that is too long to fit in the cell, the text overlap the next cell. If you should not want it to overlap the next cell, you can wrap the text. इसमें क्या होता है, अगर आपको कोई भी टेक्स्ट लॉन्ग टेक्स्ट है और वो फिट नहीं होता है एक सेल के अंदर, तो वो ओवरलैप हो जाती है नेक्स्ट सेल पे. सो इफ़ यू डू नॉट हैव इट टू ओवरलैप द नेक्स्ट सेल, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट सेल आपकी ओवरलैप ना हो, तो आपको wrap text करना होगा. कैसे करना होगा? स्टेप 1, मूव टू सेल A2, टाइप टेक्स्ट टू लॉन्ग फिट टू एंड प्रेस एंटर. आपको क्या करना होगा? A2 सेल पे मूव करना होगा और टाइप करना होगा टू लॉन्ग फिल आपको उस पर टाइप करने होंगे. सेकेंड इज रिटर्न टू सेल A2, चूज़ द होम टैग एंड क्लिक द wrap text बटन. इन स्टेप्स को फॉलो करके आप wrap text क्रिएट कर सकते हैं. Excel wraps the text in the cell. कि आप कैसे करेंगे? ये आपका स्टेप 1 हुआ कि आपने यहाँ पर ये लिखा जॉन इज़ अ गुड बॉय. या आपने एक टेक्स्ट फिल किया यहाँ पर, फिर इसको आपने सेलेक्ट किया. इस तरीके से आपका वो शो हो जाएगा अगर आप सिंगल सेल के अंदर करते हैं तो. और यहाँ पर आप सेलेक्ट करके wrap text एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं. योर नेक्स्ट टॉपिक इज सेविंग अ वर्कबुक. इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू सेव योर वर्क. It is only after saving that the file will be available later for any use. In order to save a document, the steps are. आपको अगर अपनी फाइल सेव करनी है तो आप कैसे करेंगे? आपको ये स्टेप्स फॉलो करनी होंगी. फर्स्ट, क्लिक द सेव बटन आफ्टर क्लिकिंग ऑफिस बटन. आप ऑफिस बटन पे जाएंगे, पहले ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा? आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे. यू विल गेट अ सेव एज डायलॉग बॉक्स. आपको इस तरीके का एक सेव एज डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा. मूव टू वेयर यू वांट टू सेव द डॉक्यूमेंट एंड देन गिव द डिज़ायर्ड फाइल नेम वेयर इट सेज फाइल नेम. यहाँ पर फाइल नेम दिया गया है आपको, ये आपके पास फाइल नेम है. यहाँ पर आपको अपने फाइल नेम फिल करना है. किसी भी फोल्डर में जहाँ पे आपको सेव करना है वो फोल्डर पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे अपना फाइल नेम लिखेंगे, देन click on the save. Excel files are saved with the extension of .xlsx. आपको अगर किसी फाइल को सेव करना है तो उसमें एक्सटेंशन, आपको जब भी आप नेम लिखेंगे उसके पीछे एक्सटेंशन आएगा आपका .xlsx. नेक्स्ट इज ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक. अगर आपकी कोई भी वर्कबुक पहले से बनी हुई है तो आप एग्जिस्टिंग वर्कबुक को कैसे ओपन करेंगे, अब वो आगे आपको बताया जाएगा. इन ऑर्डर टू ओपन एन एग्जिस्टिंग सेव फाइल, द स्टेप्स आर क्लिक ऑन द ओपन फाइल बटन आफ्टर क्लिकिंग ऑफिस बटन. द ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपेयर. चूज़ द फाइल एंड क्लिक द ओपन बटन. आपको क्या करना होगा? वापस से अपनी एक्सेल जो आपने ओपन किया है, आप पहले ओपन फाइल्स में जाएंगे. ये रहा आपका ओपन फाइल. यहाँ पर जाकर, और ये कहाँ से ओपन होगा? वापस से आपको ऑफिस बटन पे जाना, ऑफिस बटन पे क्लिक करके ओपन पे क्लिक करना है. ओपन पे क्लिक करते आपको अपनी सारी फाइल्स शो हो जाएंगी. यहाँ से अपनी फाइल्स को आपको सेलेक्ट करना है एंड देन क्लिक ऑन द ओपन बटन. और आपको अगर अपनी फ़ाइल ओपन करनी है और सेव करनी है तो इसकी आपकी शॉर्टकट कीज़ भी दी गई हुई है. टू ओपन अ फाइल यू हैव टू press Ctrl+O, and to save your file you have to press Ctrl+S. Both the keys are pressed together at a time. Next topic is changing existing information.
अगर आपकी कोई भी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो आपने पहले से डेटा फीड किया हुआ है, फाइल सेव की हुई है, अगर आपको उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो आप कैसे करेंगे? देयर आर डिफरेंट वेज टू एडिट इन्फॉर्मेशंस previously entered into a cell. The simplest way to erase information is first click once on the cell containing information that need to be erased, or highlight multiple cells containing information that need to be erased. अगर आपको जैसे आपको यहाँ एग्जांपल दिया गया, ये फिल्स आपके पास यहाँ पे फिल है, आपको जिस भी फिल को यहाँ पर इरेज करना है उसको पहले आप सेलेक्ट करेंगे, देन प्रेस द डिलीट की ऑन द कीबोर्ड, और कीबोर्ड पे आपको डिलीट की, अब कीबोर्ड पर आपकी डिलीट की होती है, आप उनको प्रेस करेंगे, देन सी द रिज़ल्ट इज़, आप अगर जब डिलीट करेंगे तो यहाँ पे ये ब्लैंक आ जाएगा, आपका जो भी सेल है यहाँ पे जो आपने डेटा जो लिखा हुआ था वो इरेज हो जाएगा। नेक्स्ट इज अंडू। एक्सेल कीप्स ट्रैक टू रिसेंट actions that you have executed. If you accidentally delete something or make a change that you can do not want to keep, you can use undo to reverse that action. अगर आपसे कुछ भी इरेज हो गया है गलती से, या फिर आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं जो आपने पहले करा था वो अगर आपको इरेज हो गया है तो undo यूज़ करके आप वापस से उसको रिजर्व कर सकते हैं। To undo one action at a time, क्लिक ऑन द अंडू आइकन ऑन द टूल बार। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपको अंडू करना है किसी भी एक्शन को तो ये आपको यहाँ पर अंडू बार दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे। एवरी टाइम यू क्लिक ऑन द अंडू आइकन, एक्सेल सर्कल्स बैकवर्ड्स थ्रू योर मोस्ट रिसेंट अनसेव्ड एक्शंस एंड अंडर्स देम वन एट अ टाइम। आप जितनी बार भी इसको क्लिक करते जाएंगे तो जितने भी आपने चेंजेस करे होंगे, अगर आपने कोई भी फाइल सेव नहीं की है और इसमें अगर आप एडिट करते हैं, कुछ भी चेंजेस करते जा रहे हैं, तो अंडू जब आप क्लिक करते जाएंगे तो जो आपका पहले इरेज हो गया होगा वो मूव होता जाएगा, उसका रिवर्स होता जाएगा फिर से। टू अंडू मल्टीपल एक्शंस एट वंस, अगर आपको एक ही बार में मल्टीपल एक्शंस को अंडू करना है, क्लिक ऑन द backward pointing arrow to the right of the undo icon, select an action from the list. Excel reverts the selected actions and all of the actions above it. Redo, अब redo किस लिए यूज़ में आता है? If you decide that you really did not want to undo an action, अगर आप चाहते हैं कि आपको रियली कोई एक्शन अंडू नहीं करना है, क्लिक ऑन द रीडो बटन, तो आप रीडो बटन को क्लिक कर सकते हैं। नोटिस दैट रीडो ऑल्सो हैज़ अ एरो बिसाइड इट, आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि एरो, रीडो का एरो भी आपको यहाँ पे दिया गया है अंडू के पास। नोटिस दैट रीडो ऑल्सो हैज़ अ एरो बिसाइड इट, प्रोवाइड द ऑप्शंस टू रीडो मोर देन वन सेक्शन एट अ टाइम, ये एक ही टाइम पे ऑप्शन यूज़ किया जाता है। ये नाउ नेक्स्ट इज सेलेक्टिंग सेल्स। It is only after the content has been selected that the content can be managed and changed. सेलेक्टिंग सेल क्या होता है? ये आपका जो आपका कंटेंट है, सेलेक्टेड कंटेंट है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। ये मैनेज करता है आपके कंटेंट चेंज को, जो अभी आप चेंजेस करते हैं। सेल कैन बी सेलेक्ट इन डिफरेंट वेज, आप सेल को डिफरेंट वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं। सम ऑफ दीज आर, कुछ आपको यहाँ पर बताया भी जा रहा है। सिंगल सेल, क्लिक ऑन द सेल दैट यू वांट टू सेलेक्ट, notice that the cell becomes surrounded by a black border, this means that cell is selected। अगर आप कोई भी सेलेक्ट कर रहे हैं इसमें तो जैसे ये बॉर्डर आ गया तो इसका मतलब आपने वो सेल सेलेक्ट कर लिया है। रेंज ऑफ सेल, क्लिक एंड होल्ड डाउन इन द सेल while dragging the mouse to select additional cells in the desired range। अगर आपको सबको सेलेक्ट करना है तो आपको यहाँ पर होल्ड करना होगा किसी भी एक होल्डर इस सेल पे, जैसे आपने ये सेल को यहाँ सेलेक्ट किया, इसको होल्ड करके ड्रैग करेंगे तो सारा आपका जो भी आपका डेटा है वो सब सेलेक्ट हो जाएगा। रिलीज़ द माउस व्हेन यू सेलेक्ट ऑल द सेल, जब आपको पूरे सेल सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको माउस को रिमूव कर देना है। मल्टीपल रेंजेस, क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट माउस while dragging the mouse to select more than one cell, release the mouse button after you have selected the required cell। मल्टीपल रेंजेस को आप कैसे करेंगे इसके अंदर सेलेक्ट, जैसे कि यहाँ पर आपने एक नंबर लिख दिया, उसके बाद आपकी कैसे करना है आपको, क्लिक एंड होल्ड
द लेफ़्ट माउस वाइल ड्रैगिंग द माउस, जब आप माउस ड्रैग करेंगे तो आपको लेफ्ट माउस को होल्ड करना होगा, क्लिक करना होगा। रिलीज़ द माउस बटन आफ्टर यू हैव सेलेक्ट द रिक्वायर्ड सेल, जो भी आपका रिक्वायर्ड सेल उसको सेलेक्ट करने के बाद आप माउस को रिलीज़ कर देंगे। होल्ड डाउन द कंट्रोल। योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मल्टीपल रेंजेस। फर्स्ट, click and hold the left mouse while dragging the mouse to select more than one cell. Release the mouse button after you have selected the required cells. अगर आपको मल्टीपल सेल्स अगर सेलेक्ट करनी है तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट सेल पे क्लिक करना होगा और होल्ड करके उसको लेफ्ट माउस से ड्रैग करना होगा। सेकेंड स्टेप, होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड यूज़ द माउस टू सेलेक्ट अनदर रेंज ऑफ सेल्स। आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं कंट्रोल की प्रेस करके। Repeat this procedure for each of the ranges required. Release both the mouse and the control key after you have selected all the desired cell ranges. Selecting an entire column, click the column letter at the top of the spreadsheet window. अभी आप क्या करेंगे यहाँ पे सेलेक्टिंग अ एंटायर कॉलम, अगर आप पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, क्लिक द कॉलम लेटर एट द टॉप ऑफ स्प्रेडशीट विंडो। स्प्रेडशीट विंडो की जो भी आप जिस भी कॉलम को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उस कॉलम पे आपको क्लिक करना है। सेलेक्ट द एंटायर रो, एंटायर रो अगर को सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्लिक द रो नंबर ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द स्प्रेडशीट विंडो। अगर आपको किसी भी रो को सेलेक्ट करना है तो आपको जो रो नंबर है उस रो पर आपको क्लिक करना होगा। यूजिंग ऑटोफिल, ऑटोफिल क्या होता है, यूजिंग ऑटोफिल मेक्स इट ईजी टू जनरेट सीरीज लाइक नंबर सीरीज, डे सीरीज एंड मंथ सीरीज। अब यूजिंग द ऑटोफिल, ऑटोफिल होती है आपकी यूजिंग ऑटोफिल मेक्स इट ईजी टू जनरेट सीरीज। आपको कोई भी नंबर ऑफ सीरीज़ बनानी है या नंबर ऑफ डेज या मंथ्स बनाने हैं तो आपको क्या करना होगा, उसको आप इजीली सीरीज़ जनरेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द स्टेप्स टू जनरेट अ सीरीज आर। अब आप सीरीज़ को जनरेट कैसे करेंगे उसके स्टेप्स देखेंगे। स्टेप 1, एंटर द फर्स्ट 2 नंबर्स ऑफ द सीरीज़ टू डिफाइन द इंटेंडेड पैटर्न। अगर आपको एक नंबर बनाना मतलब नंबर आपको बनाने हैं 1 to 10, तो आपको अगर फिल पूरा नहीं करना है 1 to 10 1 2 3 4 5, अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो आप डायरेक्टली इसको सीरीज़ के अकॉर्डिंग भी आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कि आपको फर्स्ट 2 नंबर्स लिखना है 1 and 2 और उस सीरीज़ को उसी पैटर्न में आपको करना है। तो आप क्या करेंगे, स्टेप 2, सेलेक्ट द फर्स्ट 2 सेल्स ऑफ एन इंडीड पैटर्न वेयर द नंबर 1 was in the first cell and second was in the second cell. Highlights this and drags the fill handle downward, shows the number 3 indeed intended to be placed in the next cell to the right of plus. Dragging down further will continue the pattern in additional cell. तो आप अगर जब उसको ड्रैग करेंगे 1 2 जो आपने सेलेक्ट सेल में आपने टाइप किया है 1 and 2 नंबर्स, जब उनको सेलेक्ट करके आप ड्रैग करेंगे नीचे तक लेके जाएंगे जहाँ तक आपको नंबर चाहिए वहाँ तक आपके सीरीज़ शो हो जाएगी। आपको सम पैटर्न सीरीज आर शोन है, जिस तरीके से आपको यहाँ दिया है 1 and 2 को सेलेक्ट करके जब आप ड्रैग करेंगे तो इस तरीके से आपका पूरा नंबर सीरीज़ आपकी क्रिएट हो जाएगी। So this is all about your chapter 4 working in MS Excel. Thank you.